So students, now we are taking a revision of ether. Okay, so for that, if I am writing the molecular formula of a compound, that is C4H10O. So the common formula of ether is CnH2n plus 2O. Okay, next thing, this is the formula, and here 4 carbon atoms, double में 2 ऐड करो मतलब 10 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन. दैट मीन्स हाउ मेनी इथर आइसोमर्स आर पॉसिबल. चलो अल्कोहलिक आइसोमर्स कितने थे, किसी को याद है? C4H10O के अल्कोहलिक आइसोमर्स थे 4. यस, तो इथर के टोटल 3 आइसोमर्स होंगे. ओके, चलो तो अब भाई हम इसके आइसोमर्स बनाते हैं. Okay, so first is diethyl ether, second is methyl normal propyl, and the last one is methyl isopropyl ether. Okay, and now the IUPAC name of this one is ethoxyethane, this one is 1-methoxypropane, and here also there are in longest chain 3 carbon atoms. This OC is known as methoxy. So this is 2-methoxy propane. Okay, this one is 2-methoxy propane. Next is, if I write C3H8O, then how many ether isomers are possible? Here 4 were also of alcohol and 3 ethers. Now try this. Here there will be only one isomer, okay, that is methoxyethane. Now we are taking the preparation of the ether compounds, and before that prepare the nomenclature of all the compounds which are given in a table of ether. नोमेंक्लेचर स्टार्टिंग में दिया होगा, शायद आपको याद होगा. तो वो नोमेंक्लेचर के सब पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं. ओके, इतना आपको ध्यान रखना है. ओके, इतना आपको फिर इसमें ध्यान रखना है कि वो सबका सब मतलब नोमेंक्लेचर सब लर्न कर देना आप. चलो वो रिवाइज करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रिएक्शन थोड़ी टिपिकल है. कैसे? तो देखो, टेक्स्ट बुक में तो वैसे बहुत सारे रिएक्शन दिए, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बेस पे जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है, या तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है उसमें. ओके, चलो वो कैसे, तो देखो यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल इज टेकन. दिस अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल to give RO minus Na plus. Then this RO minus Na plus is reacted with R dash X. चलो सपोज मैं इसको R डैश लिखूं तो यहाँ पे हम R लिखेंगे, या तो फिर R1 R2 लिख दो, एज यू विश. सो हियर द साइड प्रोडक्ट इज NaX and ether is obtained. Okay, ether is obtained. So this is alcohol, this is sodium alkoxide, and ether is obtained. Next, now this R may be primary, secondary or tertiary. Okay, again here R may be primary, secondary or tertiary. Similarly here this R dash X, R dash is also alkyl group, it may be primary, secondary or tertiary. तो अगेन यहाँ पे दोनों कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए कौन सी, इथर, सो एट दैट टाइम दिस हैलाइड must be primary, not alcohol.
halide must be primary, where alcoholic alkyl group, it can be anyone, either primary or secondary or tertiary, but this halide must be primary. ओके तो ये आपको याद रखना है. क्यों? अगर हमने सेकेंडरी टर्शरी लिया तो क्या होगा? तो चलो, ये मैंने यहाँ पे आर डैश लिखा है. तो अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं सपोज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले रहा हूं, Na, और यहां पे आएगा हाफ H2, प्रोडक्ट मिलेगी आपको सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सोडियम ओके, TERT और ब्यूटोक्साइड. ओके, और यहां पे हम ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड. सो देन हियर वी कैन गिव द mechanism. NaCl is obtained and remaining is attached, and it is CH3 CCH3 CH3 OCH3, and name of the compound is, this one is propane. सो थर्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी है, मिथॉक्सी ग्रुप भी है, तो उसमें पहले आएगा METHOXY. ओहो, METHOXY and then 3-methyl. ओके, METH OXY and YL. तो O पहले आएगा, Y बाद में आएगा. ओके, और ऐसी ही एक दूसरी रिएक्शन में लिख रहा हूं. और चेंज उसमें क्या कर रहा हूं देख लो. यहां पे मैं ले रहा हूं CH3Cl Na, then we are getting CH3 ONA and half H2, and then here we are taking this tertiary butyl chloride. तो यहां पे रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट. Na must be combined with Cl, but whenever we are taking secondary or tertiary halide for the Williamson synthesis, so at that time here, in place of displacement, डिस्प्लेटिव हुआ ना, Na की जगह पे Cl, Na की जगह पे CH3, और Na और Cl अटैच हो गए, मतलब ये इंटरचेंज हो गए. देख लो, तो यहां पे भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहां पे उसके अलावा ये रिएक्शन नहीं होती है. तो कौन सी होगी यहां पे? तो ये ध्यान से देखना, और Cl विल कंबाइन विथ Na. चलो वो तो बराबर है NaCl, and the hydrogen from beta carbon is attached with methanol, और यहां पे अल्फा और बीटा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. ये तो इसका नाम हुआ 2-methyl propene. क्या नाम होगा? 2-methyl propene. तो ये है क्लोरोमीथेन. तो यहां पे इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर, which one displacement here, which reaction takes place? Elimination reaction takes place. Okay, और ये याद रहा. Again, alcohol may be primary, secondary or tertiary, but halide must be primary to get the ether product. Remember this one? Okay, so next reaction is, if we take ethanol, it is heated
with H2SO4 at 443 Kelvin temperature. So at that time we are getting ethene, and if ethanol is heated with H2SO4 at 413 Kelvin temperature, so at that time we are getting डाइथाइल ईथर. याद हो तो मैंने चैम्बर वाला एक्सप्लेन किया था इसमें. सपोज एक चैम्बर में इथेनॉल और दूसरे चैम्बर में H2SO4, ओके, दोनों एक साथ आते हैं. फिर अगर H2SO4 ज़्यादा रखते हैं तो इथिन मिलेगा, और अगर हमने इथेनॉल ज़्यादा प्रोपोर्शन में रखा है तो फिर डाइथाइल ईथर मिलेगा. ओके, डाइथाइल ईथर. ओके, चलो, तो ये तो इजी है और आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है. मेन विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी. ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है. चलो, सिमिलरली यहाँ पे और एक रिएक्शन हम लेते हैं फिनॉल की. यहाँ पे हमने अल्कोहल की जैसे रिएक्शन लिखी ना, वैसे ही अब हम लेंगे फिनॉल की रिएक्शन. चलो ध्यान से देखना. फिनॉल मीन्स बेंजीन के ऊपर OH. When it reacts with NaOH, H2O, ONA, and then when alkyl halide is reacted with it, then we are getting OR, and this one is ether. अगर हमने R इक्वल CH3 लिया तो ये होगा एनीसॉल, और R इक्वल्स हमने C2H5 लिया तो क्या होगा फेनिटॉल. ओके, उस टाइम पे फेनिटॉल होगा. चलो ये भी इजी. ओके, चलो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में चलो अब आगे देखते हैं. चलो ओके, तो स्टूडेंट्स चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो वो सॉल्व करना है अभी. व्हेन सोडियम मिथॉक्साइड is reacted with secondary butyl bromide, which compound will be obtained? ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम मिथॉक्साइड इज रिएक्टेड विथ secondary butyl alcohol, secondary butyl bromide. So first of all we are getting NaBr, and then hydrogen is removed. So according to Sadzeff rule, when asymmetric secondary halide is taken, so at that time beta hydrogen is removed from the carbon where more number of alkyl group is attached. यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो ज्यादा कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे. तो ये वाला हाइड्रोजन वो रिमूव होगा according to Sadzeff rule, and we are getting okay, and here we are getting but2ene, not a but1ene. रिमेंबर दिस. मतलब फिर उसमें Sadzeff रूल तो आएगा ही, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन का ही है ना वो रूल, चैप्टर 10. ओके, तो ये हुई रिएक्शन. चलो अब बारी आती है केमिकल रिएक्शंस की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथर्स, वो इथर्स कुछ रिएक्शन देते ही नहीं है. लाइक
oxidation, reduction, and reaction with active metals like sodium. ओके तो इनके साथ इथर्स रिएक्शन नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना है. These reactions are not given by ethers. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में कुछ होगा, कुछ रिएक्शंस होती. ओके अब किसके साथ फिर बेस, हाँ बेस भी रह गया यहाँ पे. अब कौन सी रिएक्शन देंगे ईथर, तो जनरली फर्स्ट वन है विथ हैलोजन एसिड. सो ईथर्स कैन रिएक्ट with halogen acid and H2SO4. हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते वक्त वो बनाएंगे अल्काइल हैलाइड. ओके और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे वे क्या, अल्कोहल्स. चलो अब इनकी रिएक्शन हम देखते हैं वन बाय वन. तो उसमें एक आपको चीज याद रखनी है, ध्यान से देखना. वो सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं CH3OCH3 और HCl इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा पता है, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, 2H यहां पे और 2Cl यहां पे, एंड वी आर गेटिंग 2 moles ऑफ CH3Cl and H2O. तो टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ दिया है. एट फर्स्ट this bond is broken, H will be here, Cl will be here. So at initial level we are getting CH3Cl and CH3OH, and then with this CH3OH another molecule of HCl is reacted to give the water molecule and another CH3Cl. So this is the overall equation. Okay, जो भी आपको याद रखना हो. अब ये देखो सिमेट्रिक ईथर था. सिमेट्रिक ईथर का मतलब है बीच में O और दोनों साइड सेम ग्रुप्स, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक ईथर. दूसरा है एसिमेट्रिक ईथर. उसमें क्या होगा, ध्यान से देखो उसका एग्जांपल. तो यहां पे CH3OCH3 और CH3, इसका नाम है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर एंड इट इज रिएक्टेड विथ HI. तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या पता है, चलो दोनों अलग अलग कलर से हम इंडिकेट करते हैं. चलो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे I आएगा और यहां पे H आएगा. ओके तो बनेगा क्या, देख लो CH3 C CH3 CH3 OH और CH3I. जब सिमेट्रिक होता है तो फिर तो सेम प्रोडक्ट ही मिलती है आपको, लेकिन एसिमेट्रिक हो तब क्या होता है. चलो दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं. अब ध्यान से दूसरी पॉसिबिलिटी देखना. सपोज दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, बी लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव बना ये नेगेटिव बना. तो पॉजिटिव बना तो इसके साथ I- और यहां पे H, तो प्रोडक्ट क्या होगी CH3 C CH3 CH3 और I, उसके साथ आएगा CH3OH. ओके चलो तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड ये मिथेनॉल. तो दोनों में से प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, चलो तो यहां पे ध्यान रखो. अभी ए और बी में से बी क्लेवेज होगा, ए वाला नहीं होगा. क्यों, तो चलो उसके लिए दोनों बारी बारी से समझते हैं. कि सपोज यहां पे ये ब्रेक हो रहा है तो ये CH3+ मिलेगा और I- और रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव और उसके साथ H+ अटैच होगा. ओके ये रिएक्शन यहां पे हो रही है.
तो यहाँ पे ये जो CH3 प्लस बना वो मिथाइल कार्बोकेटायन होगा, और अगर बी क्लेवेज होगा तो ये पूरा का पूरा कार्बोकेटायन होगा, देख लो। और रिमेनिंग पार्ट CH3O माइनस। तो ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री होगा, मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा, और ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। विच इज मोर स्टेबल? याद करो SN1 SN2 रिएक्शन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। Okay, that's why we are getting this product, not this one. Okay, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको शायद याद होगा कि ये जो एनिसोल और फेनिटोल होते हैं, मतलब एरोमेटिक ईथर, तो एरोमेटिक ईथर्स दे गिव electrophilic substitution reaction, and this OCH3 group is orthopara directing group। और इस क्रिएशन सबसे इजी, अगर इसका हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, सो वी आर गेटिंग ऑर्थोब्रोमोएनिसोल, पैराब्रोमोएनिसोल। चलो यहां पे मैं राउंड कर रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, मतलब Br आएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेशन कर रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 NH2SO4, तो यहाँ पे NO2 आएगा, ओके। जो राउंड किया वो समझ में आया ना, यहाँ पे Br। अगर मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन किया in presence of AlCl3 and CS2 कैटल, हाँ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे और CH3Cl मेन रिएजेंट, तो फिर क्या होगा? CH3 अटैच होगा, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल। और अगर फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन हम करते हैं, सेम एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे COCH3 एसाइल ग्रुप आएगा, ओके। 2-methoxy acetophenone and 4-methoxy acetophenone, ओके। सो दिस रिएक्शंस आर क्वाइट इजी, ओके। और इसी के साथ अपना ये ईथर सेक्शन अपना कंप्लीट हुआ, ओके। इसमें मेन रिएक्शन कौन सी थी पता है? मेरी फेवरेट, एक ये कौन सा ग्रुप रिमूव होगा और कौन सा ग्रुप कहाँ पे क्या अटैच होगा, ये बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके। और दूसरी वाली ये विलियमसन सिंथेसिस का फंडामेंटल, ओके। जनरली सब टीचर्स के यही फेवरेट होते हैं, क्यों पता है? क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो ये दोनों फंडामेंटल अच्छी तरह से पहले याद रख दो। जब भी आप रिवाइज करो ईथर, तो इतना तो याद होना ही चाहिए, याद, या तो फिर जब भी आप ईथर याद करो तो उसमें आपको ये दोनों रिएक्शन तो याद होनी ही चाहिए। ये फंडामेंटल कि कौन सा वाला क्या होगा। अल्कोहल वाला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी हो सकता है, लेकिन हैलाइड वाला ऑलवेज प्राइमरी ही होना चाहिए टू गेट द ईथर प्रोडक्ट, ओके। बाकी सब इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ये, ओके। तो ये दोनों अच्छी तरह से याद रखो। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना 11 चैप्टर का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का रिवीजन फिर करवाएंगे हम, ओके। गुड बाय।